So you have to have the supremacy onto the mind. And stop holding on to the mind. And whatever good, bad times happened in your life is a past tense. So let the past be past. Why bring the past into present? And that's why we call present a present, because it is a present. It is a present. Present means gift. It's a gift. So learn to unwrap, unbox this gift of present. And be as rich and as happy as you wish to. Nobody is stopping you. But we don't address the present, and we are either hovering in our past or we are too bothered about the future. When you think about past, you torture your mind. When you worry about the future, which is just imagination of your mind, it stresses you down. And that's how you have trained your mind, always bothered about past or worrying about the future. So you are never unboxing your present. So unbox your present. It is a present. It is a gift. So unbox it, unwrap it, and see what the wonders are there in that present. So keep dancing, keep singing as much as you can, because for you especially it will be very cathartic. So keep dancing. Dance the blues away. Dance like there is never going to be a tomorrow. Huh? Don't think. Let the thinking also be dropped. So create those pauses in your timeline where this sacred space is there. No worries about the past, no worries about the future. And you create that space which is empty. And then fill this empty space with dance, with music, with singing, with flowers, with stars, or whatsoever. But don't drag past time. You know, when somebody dies in English, we say the person has passed away. Right? So the past time is passed away. Why are you dragging the body of that passed away time into this present and making your life torturous? Don't do that. Don't do this to yourself. I believe you don't hate yourself this much that you do this to yourself. Love enough. Love yourself enough to create that sacred space for your mind. I remember one time I was passing through a village, and I saw these two kids, 6 and 5, somewhat, maybe 7. So these two of them, there's no music, there is no vehicle where, the car is playing some music. There's no vehicle, there is no music system around. It's just like nowhere, and these two kids are there, and they were holding one another's hands, and they were just jumping up and down on the sand dunes and laughing out crazy. The sheer sight of these kids playing in the sands, they have no toys. They're just jumping up and down, and they're laughing and giggling and laughing and gleaming, and the shine in their eyes. It was amazing.
Unfortunately, I had no device to, click a photo or save that moment for. But yeah, sure, it is saved here, but I can't show you. But what I saw, who says you need food or money or band or music or friends or alcohol or something to feel happy or to dance? And here, these children are laughing and jumping and they would fall down and they're stumbling, and because their bodies are so flexible, nobody's getting hurt. They would again get up and then again do the jumping, and again they would laugh and jump and laugh and jump and laugh. How easy it is to be happy, and how difficult actually it is to be miserable. I was reading, one husband and wife were sitting in their salon, and wife was making these odd faces, and husband said, "What's wrong?" She said, "So many days have passed and we haven't fought." He said, "Isn't it a good thing?" She said, "No, it's not." Now, what to say about such people who are looking for reasons that how come we haven't fought? How come we haven't fought with one another? And she said, "My friend was saying, the day your husband will stop loving you, will stop fighting with you." But it's crazy. What kind of parameters of love are these? जब हम अपनों को खोते हैं, कैंसर और या किसी और वजह से, जब कभी हमारे प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, चूंकि हमारा संबंध उनके साथ इतना गहरा होता है, वो माँ हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, हम जिससे जितनी जोर से जुड़े हुए होते हैं, उनका मरना हमें उतना ज्यादा पीड़ा देता है, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। अब आपकी माँ के बराबर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मौसियां होंगी, बुआ होंगी और 10 रिश्तेदार होंगे, लेकिन माँ माँ होती है। और फिर कैंसर जैसे रोग से जब कोई पीड़ित होकर के मरता है, तो उनको उस तकलीफ से गुजरते हुए देखना और उनको फिर तिल तिल करके मरते हुए देखना और उनका इलाज में तकलीफ होना, और इलाज जब वो लेने से मना कर देते हैं, फिर उनको उस तकलीफ में देखना, निश्चित रूप से ये बहुत कष्टकारी होता है। कोई प्यारा मर जाए तो भी तकलीफ होती है, और जब कोई संबंध टूट जाता है तब भी तकलीफ होती है। वो पति पत्नी का रिश्ता हो, या 2 बहनों का हो, या 2 भाइयों का हो, या तो जहां संबंध मरते हैं तब भी दुख होता है, जब व्यक्ति मरते हैं तब भी दुख होता है। पर सच्चाई तो यही है कि यहां हमेशा चिरजीवी कोई है नहीं। हम ये बात सुनते हैं, पर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए जब हमारे बाएं दाएं कोई मरता है, हमारा प्रिय मरता है, हमारे बाएं दाएं कोई रिश्ते जब टूटते हैं, तो हम टूट जाते हैं, हम रोते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, चूंकि ईश्वर से उतना रिश्ता गहरा बनाया नहीं है। तुम खुद ही लिख रहे हो ना, तुम्हारी माँ कहती थी कि भक्तिहीन ज्ञान में कोई मजा नहीं आएगा, भक्ति की सरसता जो है वो चाहिए। और सच ये है कि भक्ति के अभाव में सुना हुआ ज्ञान मात्र शब्द होता है। उन शब्दों में न ताकत होती है, न उन शब्दों में वो असर होता है कि जब जिंदगी का झटका लगे तब उस समय तुम उसे सहन कर पाओ, तुम उस तकलीफ से न गुजरो जिस तकलीफ से तुम आज गुजर रहे हो। मन दुख होता है, जब दुख होता है, जब मन को अकेलापन लगता है, जब मन को उदासी लगती है, तब दुनिया में काम, पैसा या दोस्त उस समय पर फिर कोई भी तो अच्छे नहीं लगते हैं। और संतों ने ये बात तो हमेशा से कही कि यहां है क्या ऐसा जिसके साथ तुम सुखी रहोगे। कबीर जी का एक बड़ा प्यारा पद है, वो कहते हैं कि आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे चले जंजीर।
एक कर्मों की जंजीर से बंधा हुआ मरता है, और एक साधु है जो साधना करके सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति करने के बाद, इसको हम कहते सिंहासन अब चढ़ गए, आत्मा के ही सिंहासन में, ज्ञान के सिंहासन में आसीन होकर के कोई मरता है, तो उसकी मृत्यु भी आनंददायी हो जाती। पर जो संसार के छोटे छोटे दुखों और सुखों और प्राप्तियों में लगा पड़ा था, ऐसा व्यक्ति जब मरता है तो मरने पर ही उसको दुख नहीं है, जिंदा रहते में भी कहां सुखी था वो। बोले एक गम को भुलाने के लिए कई हजार गम सहने पड़ते हैं, एक गम भुलाने के लिए कई हजार गम सहने पड़ते हैं। पर जितना रोमांटिसाइज इस दुनिया को शायरों ने, कवियों ने करके रखा हुआ है, एक ऐसा धोखा है जिसको सब पाल के बैठे हुए। फिर धोखा तो धोखा ही है ना, आज नहीं कल अपनी हकीकत बता देता है, और फिर जब हकीकत मालूम होती है तो फिर दुख लगता है। जैसे एक पंजाबी के काव्य लिखने वाले ने ये बात लिखी थी कि इस संसार के इन्हां गंदलां दे विच कोई प्यार नहीं, इत्थे प्यार नहीं, इत्थे इतबार नहीं, ये विश दियां भरियां गंदलां ने, इन्हां गंदलां दी हुण दरकार नहीं। कि संसार को विश्व भरी वो बेल कह रहे हैं, जहां जहर है, जहां धोखा है, दुख है, और इस संसार की जहरीली बेल की अब मुझको चाह नहीं, दरकार नहीं है, मतलब अब मुझे चाहत नहीं है इसकी। ये एक पेसिमिस्टिक सोच नहीं है, ये एक रियलिस्टिक सोच है। ऐसे जानिए, आप एक रेलवे में सफर कर रहे हैं, तो उस कंपार्टमेंट में बहुत लोग होते हैं, और जो आपकी सीट के बिल्कुल पास होते हैं, थोड़े ही समय में हाय हेलो हो जाएगी, थोड़ी देर में कहाँ जा रहे कहानियां हो जाएंगी, थोड़ी देर में खाना चाय वो आपस में शेयर हो जाएगी, बातें चलेंगी, गप्पे चलेंगी, फोन नंबर से एक्सचेंज हो जाएंगे। पर फिर जहां स्टेशन आया वो बाय करके वो उतर जाता है। आपने कितनी बार अपने उन सही यात्रियों को फिर याद किया है, या उनको कॉल किया है, या उनको याद करके रोए हैं आप, उनके साथ आपने संभव है कोई 32 घंटे का लंबा सफर किया है, या 16 घंटे का, या 10 घंटे का सफर किया है। पर वो सफर में मिले यात्री से हम उतनी ही देर दोस्ती रखते हैं जब तक सफर चलता है। जहां सफर खत्म वहां बात खत्म। बस ऐसे ही समझ लो, आपकी जीवन की इस रेलगाड़ी में तुम्हारी माँ एक सवारी ऐसी थी जो काफी लंबा साथ चली है, और फिर वो उतर गई अपने स्टेशन पर। लेकिन हम इन सब संबंधों को इतने जोर से पकड़ के रखते हैं, जिंदा रहते हुए लड़ते झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, मर जावे कोई तो भी हम उनकी यादों से लड़ते झगड़ते प्यार करते, छोड़ नहीं पाते। सत्य क्या, असत्य क्या, स्थायी क्या, अस्थायी क्या, स्थिर क्या, अस्थिर क्या, इसका विचार तो करना ही पड़ेगा तुमको सौम्या, नहीं तो तेरा मन सौम्य नहीं रह पाएगा। आप किसी से दोस्ती करें, वो दोस्ती में धोखा दे, तो ये फर्स्ट हैंड लेसन हो जाता है कि यूं ही किसी पर विश्वास ना कर लो, यूं ही अपना दिल यहां वहां मत लगाते फिरो। एक मैं गाया करती हूं ना, एक कोई यार नु सजदा कर बैठे, था था ते सिर झुकाया नहीं जानता। पर जब आप अपना दिल जगह जगह लगाओगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। जिंदगी में मिले हुए उस दुख को एक एक्सपीरियंस की तरह लेके, उससे शिक्षा अगर हम लेके जागृत हो जाते हैं, तब निश्चित रूप से जिंदगी थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो जिंदगी रुक जाती है। और तुम जितना याद करोगे उनको जो बिछड़ गए हैं, तुम्हारा मन उतना ज्यादा दुखी होगा। जितना ज्यादा मन दुखी होगा, उतना तुम्हारे लिए ये
वर्तमान का वक्त जीना और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों से दिल लगा के या काम में दिल लगा के आप कितनी देर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेहतर ये होगा कि जिस दुख से भागना चाह रहे हो उस दुख से भागो नहीं, उस दुख से जागो। भागना उसका समाधान नहीं है, ना यादों से ना सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए, लेकिन उनसे समझ करके एक जागृति को लाना चाहिए। तो वो जागृति के लिए यह आवश्यक है कि वो हर क्षण जिसमें आपने अपनी माँ को बीमार देखा या मरते हुए देखा या उनकी अंतिम यात्रा देखी या उनको जलते हुए चिता में देखा, उसको भुलाने की जरूरत नहीं है, उसको याद रखिए। क्योंकि जितना उसको याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं मन में ये विचार कौंधेगा कि जैसे उनके साथ हुआ वही एक दिन अपने साथ भी तो होने वाला है। तो क्या मैं अपनी जिंदगी इस लिहाज से जी रही हूं जिसमें मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं होता है? जीवन का उद्देश्य है भी क्या? पहले इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। शादी, मकान, बच्चे, नौकरी, टिक मार्क, तुम ये सब डब्बे कर चुकी हो और उसका भी अनुभव तुम ले चुकी हो। कड़वे अनुभव रहे, पर कड़वे अनुभव का मतलब ये नहीं कि तुम अपना मन कड़वा रखो। कड़वे अनुभव कुछ सिखा के गए। अगर वो कड़वे अनुभव आपकी जिंदगी में नहीं आते तो आप इतनी समझदार न होती जितनी आज आप हैं। किसी ने कहा, अरे मेरे साथ उसने विश्वासघात कर दिया। अरे विश्वासघात होता ही तब है जब आप अपना विश्वास उसको देते हो। आप नहीं देते तो घात नहीं होता। विश्वास और घात